Hello, good morning students. Welcome to Skylark English School online program. Yesterday we had seen about two properties of parallelogram. That means first is opposite sides of parallelogram are equal in length. उसके ये parallelogram है, उसके opposite sides, these are the opposite sides, they are equal in length. Second property, we have proved that opposite angles of parallelogram are equal in measure, that is these are the opposite angle. So this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle, that we have proved. Okay, now third property we are going to prove that the adjacent angles are supplementary. Adjacent angles of parallelogram are supplementary. What is mean by supplementary? Means जो भी एंगल्स है उसकी एडिशन 180 होती है. तो एडजेसेंट एंगल, इफ वी टेक ए बी C and D, this is a parallelogram. तो इसमें एंगल A and angle B is these angles are adjacent. What is why? Because this AB is a transversal and AD is equal to BC. That we have already proved that side AD and BC are same and they are drawn from the same transversal AB. AB में से ये दो segments गए हैं. So these angles are interior angles. तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है? these are supplementary, that is इसकी सम जो होती है वो 180 होती है क्वाड्रिलेटरल की. ओके, सेम विथ B and C. BC is a transversal and AB and CD are the two sides passing from this transversal. So these are again adjacent angles. So ये B plus C is also 180. C or D is 180 and D and A are 180 degrees. Okay, so this is a adjacent. These are called adjacent angles. Have you understood what is mean by adjacent angles? So I will take one example. See, this is a parallelogram given best, that is B E S T. Sorry. And one of the angle given is 100. ये एंगल हमें गिवन दिया है 100 और हमें ये एंगल और ये एक एंगल फाइंड आउट करना है. ओके, सो व्हाट इज द दिस इज x, देन दिस इज y एंड दिस इज z. तो ये कैसे निकालेंगे हम? सो हमने ऑलरेडी क्या क्या प्रूव किया है? ऑपोजिट एंगल्स आर सेम. तो ये b अगर 100 है तो ये s जो है वो भी 100 होगा, इसीलिए x इज इक्वल टू 100 हो गया. कैसे? अपोजिट एंगल्स ऑफ, वहाँ पे आपको रीजन बताना है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके, दैट्स वाई एंगल B इज इक्वल टू एंगल S, दैट मीन्स इज इक्वल टू 100 डिग्री. ओके, तो वही x है. अभी x ये है तो उसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो y है. x का एक्सटीरियर एंगल y हो गया, तो ये y जो है वो कितना हो गया? वो भी 100 हो गया, बिकॉज इट इज़ अ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. बिकॉज एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ, दैट्स वाई एंगल x इज इक्वल टू एंगल y. वहाँ पे आपको लिखना है एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल इन लेंथ. ये रीज़न आपको हर वक्त बताना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना नहीं है. उसके बाद यानी ये 100 मिल गया. नाउ इफ वी सी दिस लाइन एंड दीज टू एंगल्स, अभी z निकालना है. तो y और z कैसे है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है. लीनियर पेयर यानी ये स्ट्रेट लाइन है और उसके ये दो एंगल है. तो अगर y 100 है तो z कितना आएगा? 180 माइनस 100. क्यों? क्योंकि दिस इज अ लीनियर पेयर है. ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर ये लाइन जो निकाली है, अगर y ये है, बिकॉज स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्रीज का होता है. तो अगर y हमें दिया गया है 100 तो z कितना होगा? 180 माइनस 100, दैट इज 80 डिग्रीज. हैव यू गॉट दिस? तो हमें क्या क्या मिल गया? x कितना मिल गया? 100. ये 80 मिल गया, ये 100. अभी इससे हमें क्या पता चला? दीज आर x, दिस s एंड e, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स. वो 100 प्लस 80 180 हो गए. और b और e अगर हमने प्लस किया तो b प्लस e कितना होता है? 180. So these are adjacent angles and these are. So that's how we have proved that
द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इस तरीके से हमने ये प्रूव किया. ओके, दैट दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम now we will see the fourth property, diagonals. Diagonals of parallelogram. This is a parallelogram. Diagonals of parallelogram bisect each other. What is mean by bisect each other? It makes, if this bisects to this, it will make this side equal to this and this equal to this. Means वो जो diagonal है वो equally half होता है. Okay, if you bisect the two diagonals, that one diagonal and the second diagonal, it makes two equal halves. यानी this side is equal to this side and this is equal to this. ये और ये, this is equal to this is equal to this. This is the middle point. Okay, so it makes two equal halves. That is what the diagonals. So fourth property, the diagonals bisect each other. These are not perpendicular bisector. यानी perpendicular bisector यानी यहाँ पे वो 90 डिग्रीज बनाते हैं. पैरेललोग्राम का नहीं है वैसे. They are not making the angle of 90 degrees. They just bisect each other. Bisect each other means each diagonal cut into two halves. Okay, this side is equal to this side and this side is equal to, यानी ये साइड और ये साइड सेम होती है, ये साइड और ये साइड सेम होती है. ये आपको कैसे पता चलेगा? इफ़ यू, ये अगर आपने कटिंग किया, ओके, वी विल गिव द नेम एज ABCD. दिस इज ABCD. ओके, एंड दिस इज आवर O. दिस AC डायगोनल बाइसेक्ट BD. कैसे होता है ये मैं समझाती हूँ. इफ़ यू टेक टू कटिंग्स, ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल, कौन से, ये दो ट्रायंगल हमने लिए, तो कौन सा ट्रायंगल इसके ऊपर परफेक्टली बैठेगा, एक दूसरे के ऊपर कैसे बैठेगा. अगर A और C को हमने एक दूसरे के ऊपर रखे तो ये A और C बैठते हैं क्या? यस, होता है. ओके, सो हम क्या बोलेंगे, एंगल AOB. इफ वी टेक AOB, दिस AOB इज इक्वल टू ट्रायंगल COD. AOB इज इक्वल टू COD. ये ट्रायंगल हम दो लेंगे इसमें से. ओके, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू COD. यानी क्या, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. यानी ये एंगल और ये एंगल सेम है. ये देखो, ये एंगल और ये एंगल सेम है. O मीन्स व्हाट, दिस इज O, तो वो कॉमन ही है. नेक्स्ट क्या है, दिस B इज इक्वल टू D. ओके, क्योंकि हमने ये प्रूव किया था, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. तो ये अगर हमने दो ट्रायंगल लिए और एक दूसरे के ऊपर रखे तो कैसे होगा, AOB और COD. DOC नहीं बोलना है. AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू COD, यानी A C के ऊपर आएगा. ओके, और B जो है वो D के ऊपर आएगा. उल्टा करना पड़ेगा उसको, तो ही ये दोनों सेम आ सकते हैं. सो AOB इज इक्वल टू COD. दैट मीन्स AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD. तो ये जो है वो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है, ये कॉन्ग्रुएंसी आपने ऑलरेडी देखी है, दैट इज ASA कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी. ओके, ये आपको क्या करना है, कटिंग लो और उसको नाम दो और उसको एक दूसरे के ऊपर रख के देखो कि कौन सा ट्रायंगल किसके साथ मिलता है, यानी कौन सा एंगल किसके साथ मिलता है वो देखना है. एंगल ASA, एंगल साइड एंगल, यानी ये दो एंगल हो गए. ओके, और दिस इज द साइड, ये जो साइड है इसकी ये साइड और ये साइड. ओके, सो दिस इज ASA कॉन्ग्रुएंसी. तो इस तरीके से हमने देखा, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स दे मेक टू इक्वल हाफ्स. दे आर नॉट, ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे से सेम नहीं है. सिर्फ क्या सेम है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. ये दो BD और AC सेम नहीं है. दैट यू हैव टू कीप इन माइंड.
Okay, on this all these properties there is exercise 3.3 that you have to you just try to solve it at home. Okay, till then, bye.